خواجہ اجمیری کا کردار ایسا تھا کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر بھی مسلمان ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ کو بتاؤں، ایسے ایک واقعہ ایک لڑکے کا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا دیکھتے دیکھتے عاشق اور دیوانہ ہو گیا۔ بات یہ تھی، غریب نواز روزانہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر بعد نماز عصر روتے تھے، بہت درد بھری آواز میں روتے تھے۔ وہ ہندو لڑکا تھا، روز وہاں سے گزرتا تھا، خواجہ کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، سنتا تھا۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر یہ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، یہ مسلمانوں کا بابا یہاں بیٹھ کر روز روتا ہے، درد بھری آواز میں روتا ہے، کیا بات ہے، آخر یہ روتا کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا، بیٹا کوئی بات ہوگی جس سے وہ روتا ہے، کوئی اسے تکلیف ہوگی، اپنوں کی یاد ستاتی ہوگی، یا کوئی درد ہوگا۔ لیکن اس لڑکے کو سکون نہیں ملا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں کہ آخر آپ کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی آپ کو ہے۔ اتنا سوچا، اپنی ماں سے بولا، ماں، میں مسلمانوں کے بابے سے ملنا چاہتا ہوں، مل کے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کون سی درد ہے جو آپ اتنی درد بھری آواز میں روتے ہیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے۔ اب یہ لڑکا پہنچا خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ تو مسلمانوں کے بابا ہیں، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، روز یہاں سے نکلتا ہوں اور سنتا ہوں کہ روز آپ روتے ہیں، درد بھری آواز میں روتے ہیں، آخر آپ روتے کیوں ہیں؟ رلانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کہیں درد ہے؟ کیوں آپ روتے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، یا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ آخر آپ اتنی درد بھری آواز میں کیوں روتے ہیں، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکے نے اتنا کہا تو خواجہ اجمیری نے فرمایا، بیٹا، نہ مجھے کوئی درد ہے، نہ مجھے کوئی دقت ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی الجھن اور پریشانی ہے۔ لڑکے نے کہا، پھر آپ کی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، بس رونے کا سبب اتنا ہے، مجھے میرے پیر کی یاد آتی ہے، جب ان کی یاد مجھے آتی ہے تو ان کی یاد میں مجھے رونا آتا ہے، اور میں جو ہے اس لیے روز میں روتا ہوں ان کی یاد میں، کیونکہ مجھے ان کی یاد بہت ستاتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ جب اس بچے نے اتنا سنا تو کہا، آپ اپنے پیر کے پاس جاتے کیوں نہیں ہیں؟ چلے جاؤ اگر اتنا ہی تمہیں جو ہے درد ہوتا ہے۔ تو کہا، جانے کا تو بڑا من ہے، لیکن کیا کروں، شریعت کی پاسداری کے لیے جو ہندوستان آیا ہوں، اب یہاں سے اگر چھوڑ کے جاؤں گا، ہمیں حکم اور آرڈر یہاں رہنے کے لیے ملا ہے، اس لیے ہم ان کی یاد میں رو لیتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آج تک سنا تھا کسی کی درد ہوتی ہے تو روتا ہے، کسی کو دکھ ہوتا ہے تو روتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، لیکن آپ کسی کی یاد میں اتنا روتے ہیں، اتنی محبت ہو جانا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات میری عقل میں بیٹھ نہیں رہی ہے کہ کسی سے اتنی محبت کر لی جائے کہ اس کی یاد میں اس طریقے سے بے چین ہو کر کے اور اتنی درد بھری آواز میں رویا جائے۔ تب کہا تھا خواجہ اجمیری نے، بیٹا، تیرے کو کسی سے محبت نہیں ہوئی ہے، اس لیے تو جانتا نہیں ہے۔ کہا، تو پھر یہ محبت اگر میں کرنا چاہوں تو کیسے ہوگی؟ تب خواجہ نے فرمایا تھا، اگر تجھے کرنا ہے تو سب سے پہلے تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور کلمہ پڑھ کے پھر میرا مرید بن جا، پھر تو دیکھنا کہ محبت کیسے ہوتی ہے۔
अब उस लड़के ने कहा मैं इससे तो मुसलमान नहीं होऊंगा, पहले मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ। ख्वाजा ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है। वो लड़का अपनी माँ के पास पहुँचा और कहा माँ, मुसलमानों का बाबा। जब मैं उनके पास गया और पूछा कि आखिर रोने का सबब क्या है, तो बाबा ने मुझे बताया कि रोने का सबब बेटा ये है कि मुझे मेरे पीर की याद आती है, मैं उनकी याद में रोता हूँ। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि किसी से इतनी मोहब्बत कर ली जाए कि उसकी याद में रोया भी जाता है, उसकी याद में इतना रोया जाता है। माँ ने कहा बेटा होगा, तुझे क्या करना है। कहा मुझे भी जानना है कि ऐसी कैसी मोहब्बत होती है कि उसमें रोया जाए। तो कहा उसके लिए माँ मुझे इजाज़त दे दे, मैं मुसलमानों के बाबे का जो वो कलमा पढ़ाते हैं वो कलमा पढ़ूँगा और उनका जो है मैं मुरीद बनूँगा। उन्होंने कहा है कि मुरीद बन जा, तुझे भी समझ में आ जाएगा मोहब्बत किसे कहते हैं। माँ ने कहा बेटा उनके धर्म से उनके दीन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा दीन अलग है, उनका दीन अलग है। बेटे ने कहा लेकिन माँ मेरी ख्वाहिश है। तब माँ ने मजबूर होकर के आखिर में कहा बेटा तू ज़िद्दी लड़का है और जब ज़िद कर लेता है तो तू वो काम करता ज़रूर है, इसलिए जा, मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है, तू चला जा और जो है जो तेरे मन में है वो करके भी देख ले। इतना सुना जब उस लड़के ने तो पहुंचता है ख्वाजा की बारगाह में। पहुंचने के बाद जो है कहता है ठीक है, मैं अपनी माँ से इजाज़त लेके आया हूँ, अब मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। ख्वाजा ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। कहा पढ़ बेटा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नूर ईमान उसके सीने में पहुंचता है, दिल उसका रोशन हो जाता है। ख्वाजा की निगाह उठती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। दिल की दुनिया जब संवर गई, ख्वाजा ने फरमाया अब तेरा काम ये है, तू मेरा मुरीद बन जा। अब उसे अपने इरादतमंदों में आपने शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद उसकी ड्यूटी लगाई कि अब तुझे मेरे साथ में रहना होगा, मेरे साथ में खाना होगा, मेरे साथ ही मतलब तुझे सोना होगा। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो ख्वाजा के साथ में खाता भी था, ख्वाजा के साथ में उठता बैठता भी था, ख्वाजा के साथ में सफ़र भी करता था। कुछ अरसा जब गुज़रा तब ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया बेटा अब तू एक हफ़्ते के लिए अपने घर चला जा और एक हफ़्ते मुझसे तुझे मिलने की इजाज़त नहीं है। एक हफ़्ता तू अपने घर पे रहेगा, यहाँ तुझे आने की इजाज़त नहीं है। पीर से मुरीद को लगन और मोहब्बत तो हो ही जाती है। वो भी आखिर सच्चा मुरीद था, उसे भी ख्वाजा से लगन हो गई, लेकिन उसे अभी एहसास नहीं हुआ था। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही हफ्ते की बात है। वो अपने घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो है अपनी माँ से बोलता है कि मेरे पीर ने मुझसे कहा है एक हफ्ता अब तू घर पे रहे, एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना। माँ ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तू मेरे पास भी एक हफ्ता रह लेगा। माँ ने खाना बनाया, खाना जब शाम में लगाया, लगाने के बाद कहा बेटा हाथ पैर धुल ले, खाना खा ले। वो हाथ धुल के आया, खाने पे बैठा। अब उसके दिल में एक हलचल सी मच गई, हलचल सी पैदा हुई। अब उसको खाना सामने तो रखा है लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वही लड़का है जो खाता भी ख्वाजा के साथ में था, उठता बैठता ख्वाजा के साथ में था। अब इसका दिल नहीं लग रहा है, मन जब खाने का नहीं हुआ, माँ से बोला माँ पता नहीं मेरे दिल में उलझन कैसी है, घबराहट हो रही है, खाने का मन नहीं है, आखिर क्या वजह है। माँ ने कहा हो सकता है तेरी तबीयत न ठीक हो, अभी तो आराम कर ले। अब वो आराम करने के लिए जब बिस्तर पे पहुंचता है, बिस्तर पे पहुंचने के बाद उसे अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये ख्वाजा अजमेरी के चेहरे का दीदार करता था, फिर अपने बिस्तर में जाके आराम करता था। आज वो चेहरा सामने नहीं है, आज वो नूरानी चेहरा जब इसे दिखा नहीं तो रात में नींद भी नहीं आई। रात में उठ के ये टहलता रहा। माँ ने जब देखा बेटा बेचैन है, माँ ने पूछा बेटा क्या बात है। बेटे ने कहा माँ मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है, ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है, ना मुझे सोने में नींद आ रही है। ऐसी बेचैनी में रात गुजर जाती है। जब दिन गुजरा और रात गुजरी, रात गुजरने के बाद दूसरा दिन शुरू होता है।
नाश्ते के टाइम भी यही हाल होता है, और फिर जब खाने का टाइम होता है माँ ने कहा बेटा तूने रात भी कुछ नहीं खाया है, रात भर तू सोया भी नहीं है, देख तेरी आंखें सूज गई हैं, देख तेरे चेहरे पर मतलब जो है गमगीनी के आसार जाहिर हो रहे हैं। अब ऐसा कर, अब तो मेरे लाल खाना खा ले, अब तो मेरे लाल तू थोड़ा सा खाना खा ले ताकि तेरी माँ के दिल को सुकून हो जाए। फिर वो खाने पे बैठा, अचानक फिर ख्वाजा की याद आई। फिर ख्वाजा की जब याद उसे आती है, उसने कहा माँ मुझे मेरे पीर की याद आ रही है, मैं उनके साथ में खाता था, अब उनके बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कहा माँ तू मेरे पीर के पास चली जा और उनसे बोल दे कि आपके मुरीद, आपका आशिक जो है वो आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है, ना उसे आपके बगैर खाना अच्छा लग रहा है, ना आपके बगैर पानी अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा अच्छा माँ आखिर माँ होती है। बेटे की बेचैनी देख के माँ ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में पहुँचती है और कहती है ऐ मुसलमानों के बाबे, मुझे नहीं पता तूने मेरे बेटे को क्या सिखाया है, मुझे नहीं मालूम कि तुमने मेरे बेटे को क्या कहा है और कौन सी मोहब्बत उसके दिल में हो गई, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कल से मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है, रात में उस बिस्तर पे तो गया लेकिन सोया नहीं है, बेचैनी के आलम में रात गुजारी है उसने, अब भी वो खाना नहीं खा रहा है, बोलता है जब तक मेरा पीर साथ में नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा, उनका चेहरा देखे बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसे इजाज़त दे दो ताकि आपके पास वो आ जाए और आपका वो दीदार कर ले ताकि उसे सुकून मिल जाए। ख्वाजा ने फरमाया नहीं, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, अभी तो दूसरा दिन शुरू हुआ है, 1 हफ्ते के बाद ही उसे मिलने की इजाज़त होगी। अब माँ ने इतना सुना, बेचैन हो के वापस पहुँचती है। बेटे ने कहा माँ पीर ने इजाज़त दे दी। कहा बेटा इजाज़त नहीं दी है, वो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद ही उसे आना होगा, 1 हफ्ते के बाद ही मुलाकात हम उससे करेंगे। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है, जैसे तैसे करके शाम होती है, रात होती है, फिर रात बेचैनी में गुजारता है, काटता है। अब उसकी हालत गैर होने लगी, मुतगैर होने लगी, बदलने लगी। जब हालत बदलने लगी माँ ने देखा, तड़प गई। माँ ने जब अपने लाल को परेशान देखा, इस परेशानी के आलम में जब देखा तो माँ भी तड़पने लगी। कहा बेटा तू आखिर क्यों परेशान है, 1 ही हफ्ते की तो बात है। कहा माँ तू 1 हफ्ते की बात कर रही है, मुझे अब एक पल भी उनके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी अगर उनसे मुलाकात नहीं होगी। माँ जब तीसरा दिन होता है तो वो बोलता है माँ जाके मेरे पीर से बोल दो कि उसे अपने आशिक को आखिरी दीदार मतलब जो है करा दो और आखिरी बार उसे देख लेने दो, वरना उसकी जान निकल जाएगी, ये मेरे पीर से जाके कहना। माँ पहुँचती है तड़पती हुई, बिलखती हुई, आंखों से आंसू जारी है और कहा ए मुसलमानों के बाबे, मेरा बेटा तेरा आशिक दीवाना हो गया है और ऐसा आशिक हो गया है तेरे बगैर ना उसे खाना अच्छा लग रहा है, ना वो पानी पी रहा है और ना ही वो सुकून की नींद सो रहा है। अब तो उसकी हालत गैर होती जा रही है, हालत बदलती जा रही है। अब वो तो ये कहने पर जो है आमादा हो गया है, ये भी कह रहा है अगर पीर का दीदार नहीं हुआ तो मेरी जान निकल जाएगी। माँ मेरे पीर से कह दो कि अब इजाज़त दे दें, वरना अब मेरी जान निकल जाएगी। तब ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया ठीक है जाओ उसे मेरे पास भेज दो। अब ये माँ पहुंची बेटे के पास और कहा बेटा तेरे पीर ने तुझे इजाज़त दे दी है। जब इतना सुना उस लाल बेटे ने, उस नौजवान ने तो दौड़ता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर हुआ, कदमों पे गिरा, सर रखा और कहा हुजूर अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकता हूँ। तब कहा था ख्वाजा अजमेरी ने क्यों नहीं रह सकता है, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, मैंने तो तुझे 1 हफ्ता कहा था। कहा हुजूर अब बात समझ में आई है, 1 हफ्ता की तो अलग बात है, एक पल भी आपसे अलग रहना नहीं चाहता हूँ, एक पल के लिए भी मुझे अलग आपसे अच्छा नहीं लगता है। तब कहा था ख्वाजा अजमेरी ने बेटा तू तो मेरी सोहबत में चंद दिन ही रहा है, मैंने तो अपने पीर की खिदमत 20 साल की है। अब सोच कि मैं जब उनकी खिदमत में 20 साल रहा हूँ तो मुझे मोहब्बत कैसी हुई होगी, इसलिए मैं उनकी मोहब्बत में रोता था। तूने तो इतने दिन ही गुजारे हैं और 3 ही दिन में तेरी हालत गैर हो गई है। मुझे तो अपने पीर से जुदा हुए सालों गुजर गए हैं, बरसों गुजर गए हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आती है।
تب میں جو ہے روتا ہوں۔ بچے نے کہا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کسی سے اتنی بھی محبت ہو جاتی ہے حضور، لیکن اب مجھے جدا مت کرنا۔ خواجہ نے فرمایا نہیں، اب میں تجھے جدا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے جدائی کے درد کا احساس ہے، اب تو میرے ساتھ میں ہی رہے گا۔ وہ لڑکا خواجہ اجمیری کے ساتھ میں رہنے لگا۔ پیارے، اس سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اللہ والوں کی جب نظریں اٹھتی ہیں تو دل کی دنیا سنور جاتی ہے۔ جب عقیدت سچی ہو تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، سنبھل جاتی ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار اچھا ہو، آج ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہماری بھی بھاشا میں مٹھاس ہو، کیونکہ خواجہ اجمیری کا کردار دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ خواجہ کی بات سن کر کے لوگوں کا جو ہے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کردار پیش کیا تھا خواجہ اجمیری نے ہندوستان کی دھرتی پر۔ آج ہم پر بھی ان کا احسان اور کرم ہے، آج ہمارا بھی کردار اچھا ہونا چاہیے، اور دوسروں سے جو بات ہماری ہونی چاہیے وہ نرمی کی بات ہونی چاہیے۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہونے والی آپ تک پہنچ سکے اور آپ تک یہ دینی جانکاری